Hello guys, this is Ambar Jha and you are watching Study Side Today's channel. Actually, I'm going to show you Work and Energy second part, which is very interesting, and I was just forgetting to upload this too much as fast as possible and too soon. Because of some problem, I didn't catch that in just 1 week, so I am uploading today. So get it all cleared so you can study it perfectly and understand the concept right now clearly. If you have any doubts, you can comment me in the comment section. Okay, without wasting any time, let's get started today, right now. तो गाइस, जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेक्शन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी तक किया था। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ने टफली उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं था। मैंने बस आपको ऊपर से बता दिया था उसका फॉर्मूला क्या है और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। यू कैन जस्ट डिफाइन इट सम टाइम एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट. So today I am going to show you more about it and explain more deeply so you can understand it more nicely. So let's get started as fast. Yeah guys, so we were on potential energy here on that day, so we are continuing from here only. So let's get started with this more deeply. Okay, actually potential energy is the energy stored in an object in a specific state or position. Actually, when an object, okay guys, just try to understand, when an object is simply at rest, means it is not moving anywhere. I'm going to show you here. Sometimes suppose this is a surface, okay, means एक रोड है, आप मान लीजिए उस पे एक ऑब्जेक्ट है जो अभी इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे, आप इस पॉइंट को हम लोग A मानते हैं, ठीक है, A. So this is the point A, which is on which the object X is at standing. Means this on this point the object X is over here. So मैं actually ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा ऑब्जेक्ट X जो है वो अभी रेस्ट पे है, पोजीशन X. तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी एग्जिस्ट होगी वो मोशन की वजह से नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभी रेस्ट पे है. सिंपल सी बात है. If an object is at rest, it can't possess any of the kinetic energy due to its motion because it at rest. क्योंकि वो रेस्ट पे है तो मोशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास अभी क्या होगी, जीरो होगी. यस, it will be having kinetic energy which is only at zero. But what about potential energy guys? It will be sometimes as I had told you in the last video कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी मास. m मतलब मास, g यानी ग्रेविटी एंड h यानी हाइट. तो गाइस अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि इसका फॉर्मूला है mgh, ठीक है. तो सिंपली अगर मैं अभी आपको पूछूं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा x जो पॉइंट A पे सिचुएटेड है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, तो उसको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली क्या होता है, ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी यानी g, ये कांस्टेंट एक्चुअली या कांस्टेंट है और इसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से मानते हैं. हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियरली दिख ना रहा हो, बट मैं यहाँ पे जैसे कि आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए. As I told you right now that g, which is gravity, is a constant about 9.8 meter per second, and it is constant everywhere, so it doesn't varies at any place. But on Earth, certain positions are mainly told that it may vary their gravity of acceleration, such as at equator, the gravity exists like this, but at North Pole or South Pole, you will feel the gravity is much lesser than the equator. So let's move ahead. जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है. ओके, तो हाइट जो है, हाइट हम मान लेते हैं, अगर हमारा एक सर्टेन हाइट है ग्राउंड से, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो अभी है हाइट है उसकी वो जीरो है, बिकॉज वो अभी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, हाइट उसकी हो जाती है जीरो. बट अगर अब मैं बात करूं उसकी मास की,
गाइस जैसे कि अभी मैंने बोला आपको, उसका मास जो है वो डिपेंड करेगा मेनली किसी ऑब्जेक्ट का जस्ट मास और हाइट ही डिपेंड करता है, बिकॉज ग्रेविटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी हमारा वही रहने वाला है। बट अगर हाइट उसका है 0 और मास, चलो हम लोग उसका m ले लेते हैं, m है उसका मास, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m सपोज उसका मास है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा गाइस, कुछ ऐसा। एक मिनट में आपको बताता हूँ जरा इसको हटाने के बाद। हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मास है हमारा m, ग्रेविटी है हमारा इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए गाइस ये बात ध्यान रखिए, ग्रेविटी को भले हम लोग 9.8 ही लेते हैं, बट किसी जगह पे थोड़ा इक्वेशन को इजी करने के लिए हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी है, टू मेक इट मच बेटर एंड इजियर एट लेवल टू कैलकुलेट। ओके, सो लेट्स मूव इट। अब हमारा हाइट जो था वो क्या था, 0। सो देखिए 0 अभी हमारा एक चीज आ गया, तो 0 से जो भी इंटू होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे, PE से, या PE हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 0। ये 0 है गाइस, ये 8 नहीं है, ये अलग 0 है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड फास्ट। ना गाइस अब मैं थोड़ा 2 मिनट आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको ये टॉपिक से थोड़ा अलग भी लगे, पर फिर भी देखिए ये आपकी स्टडी से ज्यादा रिलेटेड है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वो पढ़ ले। You should always highlight the main points of the textbook, so you don't feel any burden over your. Okay, so you may have to remember only few points from some chapter to make it damn easy. Am I right? From some of you may, I think yes, because it is the best way to revise your whole theory in just 1 to 2 hours. Yeah guys, I am not joking over here. आपको अगर अपना सिलेबस थोड़ा इजी करना है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे बहुत स्टडी मटेरियल में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को हाईलाइट करना है और उन्हीं पे ध्यान देना है। दूसरे शब्द को भूल ही जाइए कि वो है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। डू नॉट पे अटेंशन ओवर देम, सो यू डोंट फील एनी बर्डन ओवर योर। ये रियली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपका जो बर्डन है वो आपको नहीं लगेगा। इससे आपको जितना आपको ध्यान देना, जिसपे आपको फोकस करना है, सिर्फ उतना ही आप फोकस करेंगे तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएंगी। या आई एम नॉट जोकिंग गाइस। ओके, मैंने फिर कुछ और सर्टेन पॉइंट्स लिखे हैं, फिर अभी ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिसन गाइस, एक्चुअली आई हैड सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू मेकिंग देम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स मेमोराइज। देखिए मैंने अपने बहुत दोस्तों को देखा है, क्लास में भी और स्कूल्स में भी, और बहुत ज़्यादा जगह पर वो लोग अपने आंसर्स जो है रट्टा मारने लगते हैं, मेमोराइजिंग करने लगते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है पढ़ने का। यस, देखिए क्वेश्चंस जो हमें सर्टेन क्वेश्चन नोट्स के मिलते हैं क्लास में टीचर्स से, स्कूल्स में, कि एक क्वेश्चन है ये चैप्टर के, आपको इतने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, याद करने हैं, अब वो एग्जाम में लिखना है, ठीक है। हाँ जरूरी है, आंसर्स पढ़ना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, और मेरी ये कोई भी मेरा पॉइंट नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो याद कर वो छोड़ दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो आप याद करते हो ना, वो याद ना करके एक बार, सिर्फ एक बार कोई भी चैप्टर का अपने मन से, विदाउट concentrating on any other object or any other work, just focus for some time on same chapter which you are studying about, question answers over them. Because अगर आप ऐसा मेमोराइजिंग करने लगोगे ना, तो आप जो आंसर जो होंगे वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड के लिए याद रख लोगे, पर बाकी स्टैंडर्ड्स में आप हो सकता है भूल जाओ। यस, आई एम नॉट जोकिंग, इट इज सीरियस टॉपिक। ओके, सो प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल्सो डोंट मेमोराइज, बहुत गलत बात होती है। आप सिर्फ एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देखो, मन से जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगता है ये जरूरी है, उसको पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। यू नहीं बोला फिर उसको भी रट्टा मारने लग जाओ, बस इतना बोला, उसको सिर्फ पढ़ो। ओके,
और उसके बाद पढ़ने के बाद मन में बिना किताब खोले एक बार मन में उसको अच्छे से सोचो और इमेजिन करो उस पूरे चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाओ। फिर उसके बाद फिर अपनी क्वेश्चन आंसर्स की किताब खोलो और फिर क्वेश्चन आंसर्स याद करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एक क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने में, याद करने में, एटलीस्ट याद करने में 2 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, कितना भी बड़ा हो जाए वो। ये आई एम नॉट जोकिंग। हाँ, बस आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है, इंग्लिश तो सबको आता है बिकॉज सब पढ़ते हैं। और यही है। और मैं देखिए गाइस, ये चैनल खोल के मैं कोई अपना स्मार्टनेस या ओवर स्मार्टनेस सेटिस्फाई नहीं करना चाहता। ये मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ आपके सामने और आपको जेलिसी फील करना चाहता हूँ कि आप नहीं पढ़ा सकते या फिर मैं आपके सामने पढ़ा के जरा ओवर स्मार्टनेस झाड़ू, बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू ऑल गाइस। ओके गाइस, अब हम लोग वापस से फैक्ट्स कॉन्सेप्ट वापस से टॉपिक पे आते हैं जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। अब पोटेंशियल एनर्जी को भी डेरिवेशन किया जाता है। हाँ, अब वो कैसे किया जाता है मैं आपको अभी बताता हूँ, कुछ ऐसे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको वही बोला था, अभी हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे इसका कि जैसे कि जो कि है, सी गाइस, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सबको मालूम है क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F × S। बट अभी फोर्स की बात करें तो फोर्स जो होगा किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे जो कि अभी रेस्ट पे है, वो या तो उसका एक तो उसका मास होगा जो उस पर डिपेंड करेगा, और एक ग्रेविटी। वो रेस्ट पे है तो फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है उसका, डाउनवर्ड्स। तो उसका फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा मास इंटू ग्रेविटी। तो हमने उसको मास इंटू ग्रेविटी ले लिया। डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसको हम लोग ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। उसको हाइट भी ले सकते हैं तो डिस्टेंस भी d भी ले सकते हैं, कोई इसको जरूरी नहीं है कि हम लोग h ही लें। बट उसका फॉर्मूले के लिए हम लोग यही डिनोट करेंगे बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका ज्यादा हार्ड तो इसका डेरिवेशन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आप आसानी से लिख सकते हो। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखो, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नाउ सी, here's it as example, you have to understand more nicely because this derivation is too much easy, so you can understand this as quickly as you can, but it's the examples are little bit exaggerating over and being crossed like jalebis. They are not as straight as you understand them. So let's move ahead. एग्जाम्पल है हमारा 500 किलो पानी यानी 500 किलो वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक टैंक में 500 किलो पानी है। हाँ, मुझे आपको पता है, आप में से कोई लोग बोल रहे होंगे कि 500 किलो लीटर, आई मीन 500 लीटर बोलो, बिकॉज टैंक जो है पानी को लीटर्स में गिना जाता है, मालूम है। बट अगर हम लोग उसके मास की बात करें, मास हमेशा किलोग्राम्स में लिया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो उसका जितना भी लीटर्स या फिर किलो लीटर्स में होगा, उसको अगर हम लोग उसके मास के में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो यही प्रोडक्ट होगा, 500 किलो। तो हम लोग यही पकड़ेंगे, 500 किलो पानी है एक टैंक में है जो 10 मीटर ऊंचाई पे है। अब हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है जो पानी में स्टोर्ड है। बहुत आसान, PE हमारा मिल जाएगा M × H। यहाँ पे हमारा H जो होगा वो 10 मीटर होगा और हाइट हमारा था 10 मीटर और हमारा मास क्या है 500 kgs। और हमारा ग्रेविटी का फोर्स कितना है गाइस, ये देखिए क्या लिखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमेशा पर सेकेंड स्क्वायर पे, ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। हाँ, बट ये याद रखिएगा, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एस, ना ही सिर्फ सेकेंड। ओके, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा है मास इंटू G इंटू H। G ग्रेविटी, H हमारा हाइट। तो मास हमारा है 500, हाइट हमारा है 10, ग्रेविटी 9.8। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, 49,000 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी भी जूल्स में ही काउंट होती है बिकॉज वो एनर्जी है, एनर्जी भी जूल्स में काउंट होती है। इसलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल में है वो क्या होगा, वो होगा 9,000 जूल्स। गाइस, अब हम लोग वापस अपने
डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं कुछ ऐसे। तो गाइस हम लोग वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आ गए। यहाँ पे देखिए द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक जो ऑब्जेक्ट होती है ना, जो हाइट से एक हाइट पे है, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है, और जब वो गिरता है ग्राउंड पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो जितनी भी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यस, दिस इज द आंसर। बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कोई ऑब्जेक्ट सपोज अभी गिर रहा है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है वो भी ए पे है, ठीक है गाइस, ए पे है। फिर वो कुछ टाइम बाद बी पे आ गया, फिर कुछ टाइम बाद उसने ग्राउंड को टच कर लिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसने ग्राउंड को टच कर लिया। तो यहाँ पे उसके 3 पोजीशन हमें मिलते हैं, एक ए पे, दूसरा बी पे, तीसरा ग्राउंड पे। तो हमें इन तीनों पोजीशन से ये रेफर करना है कि उसका हाइट का जो टोटल एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा। वो सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी हमेशा होगी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना। अब ए पे ऑब्जेक्ट जब ए पे था, सॉरी फॉर दिस, जब ऑब्जेक्ट ए पे था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि थी 0, बिकॉज अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक, कॉज अभी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है अभी फिलहाल के लिए 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। और जब v ही 0 होगा तो सब 0 हो जाएंगे, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। बट अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो मास, ग्रेविटी और हाइट उस पर तीनों लागू हो रहा है। तो हम लोग उसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे उसकी जो एनर्जी प्रोसेस होती है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आने पे हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो बी पे है अभी, उसका हाइट, मास और ग्रेविटी तीनों कांस्टेंट है, तो अभी भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का पल्ला ही भारी है। देखिए मैं आपको एक चीज करके बता देता हूँ, आप थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए अगर यहाँ से पॉइंट ए से ग्राउंड तक का डिस्टेंस जो है वो h है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो ये हो जाएगा h माइनस x। ओ आई मीन सॉरी फॉर दिस गाइस, एक्चुअली ये नहीं x माइनस h होगा, सॉरी, एक्चुअली ये x है, ये एक्चुअली यही है x है, और हमारा ये हो जाएगा h माइनस x, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट क्या है उसका, यस हाइट क्या है बताइए। अरे हाइट जो है ना गाइस, उसका हाइट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x, h माइनस x, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, हाइट क्या है h माइनस x, तो ब्रैकेट में h माइनस x, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें इधर इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। m हमारा m ही है, और
हाफ एम वी स्क्वायर, और v जो होगा हमारा, v हमारा हो जाएगा 2gx। अब उसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है, वो आपको थोड़ा 2 मिनट में बताता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा इधर पे ही चलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी में मिला के मिलता है वो mgx हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम mgx और mg ब्रैकेट h माइनस x को प्लस करें तो भी हमें mgh मिलता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और एट पॉइंट C तो हद ही हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो हो जाएगी 0। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ वही ऐड होगा, जो कि होगा mgh। या तो कैलकुलेशन करने पे हमें मिलता है mgh, जो कि हो जाएगा हमारा mgh कांस्टेंट। तो हमारा जो देखा हम लोग ने तीनों सिचुएशंस में, हमारा एक ही कांस्टेंट था जो कि था mgh। अब वो कैसे था मैं आपको अभी बताता हूँ, ओके। तो गाइस, जैसे कि आपको फर्स्ट वाला जो होगा वो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि उसका डेरिवेशन बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमारा जो वेलोसिटी था, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक कर लीजिए, वहां पे देख के आप वापस इधर आ जाइए, ओके। तो हमारा जो वेलोसिटी था वो था u, जो कि था 0। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो था ए पे था, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh जो कि कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारा वहां का टोटल एनर्जी हो जाता है mgh जो कि कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट केस में थोड़ा फटाफट जाऊंगा, तो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट केस में जो है हमारा u जो है अभी भी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी। हाइट है हमारा x और एक्सेलरेशन होगा हमारा ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है g। तो अगर हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन पे जाएं तो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हमारा u तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx में मिलता है। gx यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि a जो है हमारा जो g है और s जो है हमारा x है, ठीक है। इसलिए हम लोग ने जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग ने 2gx से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया v को, बिकॉज v स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलती है 2gx। तो अगर हम लोग फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है कि E इक्वल्स टू mgx, यानी काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है mgx। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो हमें मिलता है mg और ब्रैकेट में h माइनस x, बिकॉज हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा एक पोजेस करता है एट रेस्ट पे। तो उस हाइट पे जब वो रेस्ट पे है तो वो कुछ ऐसा हो जाता है। अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है mgx प्लस mgh माइनस mgh। तो mgx कैंसिल आउट एंड हमें वापस मिलता है mgh जो कि एक कांस्टेंट है। अब हम लोग थर्ड केस पे चलते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी अब भी 0 है, हाइट हमारा अब h हो गया और एक्सीलरेशन और g है। वापस न्यूटन लॉ के अगर हम लोग वापस से चले फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन पे, तो अब इस बार हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 2gh। जस्ट s को हम लोग ने h लिया है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हम लोग ने उसको सिंप्लीफाई किया तो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है mgh। और अगर हम लोग नेक्स्ट पे चले पोटेंशियल एनर्जी पे, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारा h और m पे डिपेंड करता है, और हमारा h जो है वो 0 हो चुका है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाती है 0। इसलिए थर्ड केस में भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है mgh। इसलिए हम तीनों केसेस में पाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही कांस्टेंट से आगे बढ़ रहा है, ओके गाइस। अब आप आ जाते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फटाफट से करूंगा गाइस। जैसे कि आप नॉर्मल डेज में देखते हैं, हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत वेरियस एनर्जी में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग हीटर के यूज से उसको हीट में बदल देते हैं, और हीट एनर्जी को हम लोग थर्मोकपल के एक्सपेरिमेंट से उसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मेनली हमारा कार्बन और कोल को बर्निंग से होता है, ओके गाइस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोग जो नॉर्मली एसी, फैन, इंजन ये सब चलाते ही हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी भी उसको कन्वर्ट करता है। और जनरेटर जो इसको वापस मैकेनिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन, लाइट जलाते हैं। और अगर हम लोग वापस सोलर सेल की बात करें, यानी
सन की हीट से अगर हम लोग उसको एब्जॉर्ब करें तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सारी की बात करूं तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज। ओके, समझ रहे हैं? इंटरचेंज यानी कभी वो हीट में बदल रहा है तो हीट वापस इलेक्ट्रिक में, कभी साउंड में तो वापस साउंड इलेक्ट्रिसिटी में, यानी वो बदल जरूर रहा है। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि एनर्जी को हम लोग कभी ना मिटा नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं मिटा दूं लाइट फोड़ के, तो वो मिटाना थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अभी भी वायर्स में आ रही है, पर उसको कोई पास लेने वाला कोई नहीं है। बट है तो अभी भी, मैंने उसको मिटाया नहीं, सिर्फ उसके सोर्स को मिटाया है, न कि एनर्जी को। और यही हमारा एक मेन लॉ प्रोड्यूस करता है, जो पूरे इंटरनेशनल और ग्लोबल लॉ है, ये सब मानते हैं, जो कि है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हमारा एनर्जी को, जो भी एनर्जी होती है वो किसी भी रूप में हो, वो कोई भी ना ही क्रिएट कर सकता है ना ही उसको मिटा सकता है। अगर है तो रहेगा, नहीं है तो कोई ला भी नहीं सकता। कुछ ऐसा हमारे शरीर में भी जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो कभी नहीं मिटती, किसी न किसी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है धरती पे ही। अभी हम जो इस शरीर में है तो अभी इधर है। अब जब हमारी भी डेथ हो जाएगी तो हम लोग जब बरीड होंगे और जब जमीन के अंदर चले जाएंगे तो हमारी बॉडीज जो होंगी वो कार्बन में कन्वर्ट होके एनर्जी तब भी देंगी। कार्बन को हो सकता है कोई जलाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी वापस से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उस कार्बन को, और वो वापस से हमें लाइट और फैन के रूप में मिलता रहेगा। यानी हम लोग धरती पे हमेशा रहेंगे। ये जो मैंने आपको बस एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो बस मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट अभी हम लोग इस पे नहीं चलेंगे बिकॉज अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes guys, तो अब हम आ गए हैं पावर है। सो गाइस, व्हाट इज पावर? पावर इज द थिंग विच यू रिक्वायर टू डू वर्क। या दिस इज ट्रू। और मेनली इसको साइंस और फिजिक्स की भाषा में वर्क को टाइम के डिवाइड करने से हमें पता चलता है कि पावर क्या है। ओके, तो मतलब रेट ऑफ वर्क डूइंग पर टाइम इज पावर। यानी अगर मैं सपोज अगर 400 जूल्स काम करता हूँ 1 घंटे के लिए, ठीक है, तो मेरा पावर हो गया 400 जूल्स पर मिनट, पर आवर, पर आवर। बट हमारे पास एक डिफरेंट यूनिट पावर के लिए नहीं है शायद से। क्या पावर के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट एक्चुअली नहीं है, बट फिर भी जनरली एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, स्कॉटिश साइंटिस्ट है जेम्स वॉट, जिन्होंने हॉर्स पावर के जनरेशन, हॉर्स पावर के टर्म से बहुत अच्छी मान्यता हासिल की। उनके नाम पर हम लोगों ने उसका अलग यूनिट रखा है जो कि है वॉट। इसका जनरली पहले कोई ऐसा नहीं था, बिकॉज जो भी चीजें हम लोग आजकल जनरली लाइफ में देखते हैं जो रेट पे होती है, यानी जो भी ऐसा डिवीजन के रेशियो में फॉर्म में होती है, उनका एक्चुअली जनरली कोई यूनिट होता नहीं है, बट मेनली सारे साइंटिस्ट के नाम पे ही होता है, इसलिए हम लोग उसको उन साइंटिस्ट में नाम पे रख देते हैं। मैं आपको बस इसे जनरली बता रहा हूँ। अब हॉर्स पावर पे आते हैं। हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर, जो 1 हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ 746 वॉट होगा। ओके, 746 वॉट, यानी आप मान लीजिए उसको मैं ये कह सकता हूँ कि 746 जूल मैं पर आवर में काम कर रहा हूँ, पर आवर, तो यानी वो 1 हॉर्स पावर का मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा। अगर मैं अब बोलूँ कमर्शियल यूज के लिए जो हम लोग एनर्जी पावर यूज करते हैं, एनर्जी में माफ कर दीजिएगा, पावर जो यूज करते हैं हम लोग कमर्शियल यूज के, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस जनरेट करने के लिए जो बल्ब्स में यूज होती है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होती है, उसके लिए जो यूनिट है हम उसको यूज करते हैं, वो जो कि है हमारा किलोवाट, KW, जो कि होता है 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ओके, और 1 किलोवाट पर आवर होता है 1 यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं गाइस, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर आज खत्म हो जाता है, जो कि हमारा होता है एक्सरसाइजेस पे।
इन एक्सरसाइज को आप जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ये आपको बेटर हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर को। इसलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जस्ट कीप लर्निंग फॉर every second, and just keep curious by every chapter and every subject. Okay, bye bye for today and namaste.